am going to start unit 2nd, that is genetics and evolution. Today we will discuss part 1 of this chapter, and in this chapter we will discuss about the principles of inheritance and variation. First we will discuss what is genetics. It is a branch of biology that deals with the study of heredity and variation. Next is heredity. Heredity is the transfer of character from parents to their offspring. These hereditary characters are present on chromosomes in the form of genes. The gene combination express characters which may be more similar to one of its two parents. So what is heredity? It is just transfer of character from the parents. Next part is how these characters are transferred from parents to their offspring. What are the carriers? So carrier are the genes which are present on the chromosomes. So these genes, they carry the character from the parents to their offspring. Now there are two genes are present for each character. This combination of gene expresses the character. These genes make some protein, and these proteins are responsible for the expression of characters in offsprings. Next is variation. The differences in characters of all offspring mainly depend upon unique process of crossing over that occurs during meiosis. This is one of the main reasons of producing recombination. So whenever transfer of character takes place from parents to their offspring, then there are some variation or some differences are found among the offspring or between the parents and their children. So these are the variations, the differences that arises at the time of inheritance of character are known as variation. There are two regions responsible for these variation. One is the mutation and second is the recombination and crossing over that takes place during the meiosis at the time of gamete formation. Gregor Johann Mendel was born in 1822 in Hingendorf, which was a part of Czechoslovakia. He began his genetic experiment on garden pea in 1856 in the garden at the monastery. Selection of pea plant. The main reasons for adopting garden pea or Pisum sativum. Diploid number of chromosomes present in garden pea are 14 for experiments by Mendel work. Here one thing is important to note that the botanical name of garden pea is Pisum sativum, and the diploid number of chromosomes present in garden pea are 14. The main reason for adopting garden pea by Mendel were: first, pea has many distinct contrasting characters. पी के अंदर बहुत सारे contrasting characters होते हैं. Contrasting means either they were tall or dwarf. There were no intermediate character. बीच में कोई भी इंटरमीडिएट कैरेक्टर नहीं था. या तो टॉल थे या ड्वार्फ थे, या तो पिंक फ्लावर था या रेड फ्लावर था या वाइट फ्लावर था. बीच में कोई भी और दूसरा कलर नहीं था, इंटरमीडिएट कलर नहीं था. इंटरमीडिएट कलर को आप समझ सकते हैं जैसे ह्यूमन बीइंग की स्किन है. दे आर फेयर टू डार्कर कॉम्प्लेक्शन. बीच में बहुत सारे स्किन के शेड्स पाए जाते हैं. ऐसा पी प्लांट में नहीं था. वहाँ पर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे. या तो टॉल था प्लांट या ड्वार्फ था, या तो रेड कलर का फ्लावर था या वाइट कलर का फ्लावर था. तो इसको हम कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कहते हैं. नेक्स्ट इज द शॉर्ट लाइफ स्पैन ऑफ पी प्लांट. पी प्लांट्स आर एनुअल प्लांट. Annual plants are those plants which complete their life cycle in one season. This pea plant also complete their life cycle in one season within 3 months. Sowing of pea plant is done in the early winter and harvesting is done during the winter after few months. So they complete their life cycle in a very short span. Flower show self pollination. पी प्लांट का जो फ्लावर होता है वो क्लोज्ड फ्लावर होता है. क्लोज फ्लावर promotes
और फेवर्स सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि वहाँ पर उसी के एंथर से पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर आसानी से ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इट इज़ ईजी टू आर्टिफिशियली क्रॉस पॉलिनेट द पी फ्लावर्स। पी फ्लावर्स को आर्टिफिशियली क्रॉस पॉलिनेट करना आसान था। द हाइब्रिड्स प्रोड्यूस वर फर्टाइल। जो हाइब्रिड होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम हाइब्रिड आर इनफर्टाइल और स्टेराइल, लेकिन पी प्लांट के जो हाइब्रिड थे वो फर्टाइल थे। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज था मेंडल के लिए। प्योर वैराइटीज ऑफ पी वर अवेलेबल। प्योर वैराइटीज मीन्स the tall plant were not having the genes for a dwarf, and dwarf plant were homozygous recessive, they were not having the genes for a tall plant। तो प्योर वैराइटीज़ हम उन वैराइटीज़ को कहते हैं कि अगर हम टॉल प्लांट और टॉल प्लांट को क्रॉस करते हैं कई जनरेशन तक तो हमें सिर्फ टॉल प्लांट मिलते हैं, वहाँ कोई ड्वार्फ प्लांट नहीं मिलता है, तो ये प्योर वैरायटी ऑफ टॉल प्लांट हो जाएगा। इसी तरह अगर हम ड्वार्फ प्लांट को ड्वार्फ प्लांट के साथ क्रॉस करते हैं और आफ्टर सो मैनी जनरेशन वी गेट ओनली ड्वार्फ प्लांट, इट मीन्स दैट द पेरेंट्स ड्वार्फ प्लांट वर प्योर ड्वार्फ। तो प्योर ड्वार्फ या प्योर टॉल प्लांट्स अवेलेबल थे पी प्लांट्स में। F1 हाइब्रिड वर फर्टाइल। F1 जनरेशन में जो हाइब्रिड मिले थे वो फर्टाइल थे। Plant is grown easily and does not require much aftercare. Next is Mendel's experiment. Mendel performed his experiment in 3 stages. First, selection of pure or true breeding parents. Second, hybridization and obtaining of F1 generation of plants. Third, self pollination of hybrid plants obtained in F1 generation and raising of subsequent generation like F1, F2, F3, etc. So first stage of the Mendel's experiment is the selection of parents. Mendel selected 7 pairs of pure or true breeding varieties of P as the starting material for his experiment. Mendel ने पी प्लांट के अंदर 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स वाले ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज़ को सिलेक्ट किया था। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि उसने ऐसे प्लांट सेलेक्ट किए थे जिनके अंदर या तो टॉलनेस का कैरेक्टर था या ड्वार्फनेस का कैरेक्टर था। इसी तरह रेड कलर का फ्लावर था या वाइट कलर का फ्लावर था, तो इसने मेंडल ने 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर सिलेक्ट किए पी प्लांट के अंदर। On self pollination, a pure varieties give rise to offspring having similar trait, for example tall varieties। अब यह है कि प्योर वैरायटी हम कैसे पा सकते हैं, मेंडल को प्योर वैरायटी कैसे मिली। ये सेल्फ क्रॉसिंग से होता है। अगर हम टॉल प्लांट को टॉल प्लांट के साथ क्रॉस करेंगे और अगर कई जनरेशन तक वहाँ कोई ड्वार्फ प्लांट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो टॉल प्लांट हमारे पास हैं ये ट्रू वैरायटीज़ हैं या प्योर वैरायटीज़ हैं। He has selected true breeding varieties through self pollination. They form the parent P generation। तो उसने जो ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज़ ट्रू या प्योर टॉल प्लांट प्योर ड्वार्फ प्लांट जो मिले थे उसको उसने एज ए पेरेंट यूज किया। मेंडल ने प्योर वैरायटी पाने के लिए क्या किया कि टॉल प्लांट को टॉल प्लांट के साथ क्रॉस किया। टॉल पी प्लांट को टॉल प्लांट के साथ क्रॉस किया और यहाँ पे मान लीजिए फर्स्ट जनरेशन में कुछ टॉल मिले और कुछ ड्वार्फ मिले, तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ इम्प्योरिटी थी, ये प्योर टॉल नहीं था, इसीलिए यहाँ पे ड्वार्फ प्लांट मिलता है। मेंडल ने इस ड्वार्फ प्लांट को एलिमिनेट कर दिया। फिर यहाँ से 2 टॉल प्लांट लिए, उनको क्रॉस किया। उनको क्रॉस करने के बाद फिर अगर मेंडल को कुछ ड्वार्फ प्लांट मिलते हैं, मेंडल ने उसको भी एलिमिनेट किया। इसी तरह से कई जनरेशन के बाद जब ये पाया गया कि टॉल प्लांट को क्रॉस करने के बाद सारे प्लांट टॉल हमें मिल रहे हैं, तो ये कंफर्म हो जाता है कि दीज आर द प्योर
प्योर वैरायटीज ऑफ पी प्लांट। तो इस तरह से सेल्फ क्रॉसिंग के जरिए मेंडल ने टॉल प्लांट को आपस में क्रॉस किया, जहाँ भी उसको ड्वार्फ प्लांट मिला उसको एलिमिनेट कर दिया, फिर टॉल प्लांट को आपस में क्रॉस किया, फिर ड्वार्फ अगर मिलता है तो उसको एलिमिनेट कर दिया। इस तरह से कई जनरेशन तक क्रॉस करने के बाद जब ये पाया मेंडल ने कि अब कोई भी हमें ड्वार्फ प्लांट नहीं मिल रहा है, सारे प्लांट जो हैं वो टॉल मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इन सारे प्लांट्स के अंदर टॉलनेस का ही कैरेक्टर है, ड्वार्फनेस का कोई भी जीन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए सारे ये प्लांट टॉल हैं और इनको प्योर वैरायटी कहा गया। अब प्योर वैरायटीज, मेंडल के पास प्योर टॉल प्लांट थे या प्योर ड्वार्फ प्लांट थे। मेंडल ने इन दोनों को हाइब्रिडाइजेशन किया टू गेट F1 जनरेशन। तो मेंडल परफॉर्म्ड क्रॉसेस बिटवीन plants having alternate forms of a character, tall and dwarf, red flowered and white flowered, etc. He also performed reciprocal cross when pollen of one form were dusted over the stigma of other form and vice versa. देखिए रेसिप्रोकल क्रॉस में क्या करते हैं कि अगर एक बार हमने टॉल प्लांट को मेल माना और ड्वार्फ प्लांट को फीमेल मान के चलते हैं, यहाँ पर इसके पॉलन ग्रेन्स को इसके स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र किया, इसके पॉलन ग्रेन को फीमेल ड्वार्फ प्लांट के स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र किया। नेक्स्ट टाइम इसको उल्टा किया कि जो ड्वार्फ प्लांट था इसको मेल माना और जो टॉल प्लांट था इसको फीमेल कंसीडर किया और मेल ड्वार्फ प्लांट के इस पॉलन ग्रेन्स को टॉल प्लांट के स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र किया। तो इसको रेसिप्रोकल क्रॉस किया जाता है कि एक बार टॉल प्लांट को मेल मानते हैं, एक बार ड्वार्फ प्लांट को मेल कंसीडर किया जाता है, एक बार टॉल प्लांट के पॉलन ग्रेन्स को ड्वार्फ प्लांट के स्टिग्मा पर जिसको फीमेल कंसीडर किया है ट्रांसफ़र करते हैं, दूसरी बार में ड्वार्फ प्लांट के पॉलन ग्रेन्स को टॉल प्लांट के स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये एक रेसिप्रोकल क्रॉस कहलाता है। He has also done emasculation and bagging in order to avoid contamination from foreign pollen. Here one thing the Mendel had done, that emasculation bagging. Emasculation is the removal of anther from the flower before its maturation. क्योंकि जो पी प्लांट का फ्लावर है ये एक क्लोज फ्लावर होता है और यहाँ पर सपोज ये एक क्लोज फ्लावर है, यहाँ पे कुछ पॉलन ग्रेन्स हैं और अगर ये क्लोज फ्लावर है तो बाहर से कोई पॉलन ग्रेन आ नहीं सकता है, क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन ही पॉसिबल है। लेकिन अगर हम एंथर और स्टिग्मा के मैच्योर होने से पहले इसको हम काट कर हटा दें, एंथर्स को हम रिमूव कर दें, तो यहाँ हम सेल्फ पॉलिनेशन को रोक सकते हैं। तो दिस प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एंथर बिफोर इट्स मैच्योरेशन इज कॉल्ड इमैस्कुलेशन। इसके बाद जब स्टिग्मा मैच्योर हो जाता है तो हम किसी भी डिजायरेबल प्लांट के एंथर को ब्रश की मदद से इस फ्लावर को ओपन करके हम ट्रांसफ़र करते हैं और ट्रांसफ़र करने के बाद यहाँ पर कंटेमिनेशन के चांसेस को रोकने के लिए इसको पॉलीथीन बैग से कवर कर दिया जाता है। तो यहाँ दो प्रोसेस हैं, एक इमैस्कुलेशन इज़ डन टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन एंड बैगिंग इज़ डन to prevent contamination. The cross in which two alternate forms of a single character are taken into consideration is called monohybrid cross. तो एक ऐसा क्रॉस जिसमें हम एक ही कैरेक्टर के दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स को लेकर हम क्रॉस करते हैं। जैसे हाइट है, हाइट एक सिंगल कैरेक्टर हो गया
height is a single character and the two alternate forms क्या हो जाएंगे, एक tall और एक dwarf हो गया। तो अगर हम सिर्फ एक ही कैरेक्टर को कंसीडर कर रहे हैं और उसकी दो कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म्स को लेकर क्रॉस करते हैं तो उसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो यहाँ पर एक सिंगल कैरेक्टर को ही कंसीडर किया जाता है। In dihybrid cross, there are 2, 3 or many characters are chosen. If there are 2 characters are chosen to at the time of crossing, then it is called dihybrid cross. If there are 3 characters are there involved in a cross, then trihybrid, and if there are many characters are involved, it is called polyhybrid cross. Next is the self breeding for F2 and F3 generation. F1 जनरेशन में जो प्लांट्स हमें मिलते हैं उन प्लांट को क्रॉस किया जाता है, सेल्फ पॉलिनेट किया जाता है। सो फर्स्ट पॉइंट इज द प्लांट्स ऑफ F1 जनरेशन वर अलाउड टू परफॉर्म सेल्फ पॉलिनेशन. द सीड्स एंड प्लांट्स रेज्ड फ्रॉम देम कॉन्स्टिट्यूट द सेकेंड filial or F2 generation. Further self pollination produce third filial generation or F3 generation. What Mendel has done in his experiment, first he completed his experiment in 3 steps. First he selected the pure tall plant. Here you can see that pure tall and pure dwarf plant. After that he crossed these 2 plant. इन दोनों प्लांट को ये क्रॉस करता है और इसने मेंडल को ये मिलता है कि F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट थे ऑल ऑफ दे वर टॉल, सारे प्लांट टॉल हैं। इन F1 जनरेशन में से कुछ प्लांट्स को लेकर मेंडल ने ये भी टॉल प्लांट है और ये भी टॉल प्लांट है, दोनों टॉल प्लांट को जब क्रॉस किया तो मेंडल को कुछ टॉल प्लांट्स मिले और कुछ ड्वार्फ प्लांट्स मिले। अब यहाँ पर मेंडल को ये कंफ्यूजन हुआ कि इन्हीं टॉल प्लांट्स को, सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पर ड्वार्फ प्लांट है, यहाँ प्योर टॉल प्लांट है, जब इनको क्रॉस किया तो यहाँ पे सारे टॉल प्लांट्स क्यों आए। तो ये चीज़ एक कंफ्यूजन वाली थी कि यहाँ पर सारे टॉल प्लांट क्यों आए और फिर इन टॉल प्लांट्स को जब क्रॉस किया तो यहाँ पे ड्वार्फ प्लांट क्यों आया। इसका मतलब है कि ये जो ड्वार्फनेस का कैरेक्टर था ये F1 जनरेशन में प्रेजेंट था, लेकिन ये हाइट था। तो मेंडल ने इसको स्मॉल t से रिप्रेजेंट किया। क्योंकि ये प्लांट दिखने में टॉल है तो मेंडल ने ये सोचा कि इसके अंदर टॉलनेस का जीन भी प्रेजेंट होगा। क्योंकि ये प्लांट टॉल है तो मेंडल को ये कंफर्म था कि यहाँ टॉलनेस का जीन है, टॉलनेस के लिए जो जीन रेस्पॉन्सिबल है वो है, इसलिए मेंडल ने यहाँ कैपिटल T का यूज़ किया। मेंडल ने जब इन प्लांट को क्रॉस किया तो ड्वार्फ प्लांट फिर से प्रोड्यूस हो जाता है। तो इसका कंक्लूजन मेंडल ने ये निकाला कि जो ड्वार्फ प्लांट का कैरेक्टर है वो यहाँ पर प्रेजेंट तो था लेकिन ये हाइड रहा होगा, इसीलिए मेंडल ने यहाँ पर स्मॉल t का यूज किया। तो मेंडल को यहाँ से कुछ कंक्लूजन जो रिजल्ट्स मिले वो ये था कि हर कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए देयर मस्ट बी 2 genes must be present there and out of these 2 genes, तो इसको हम laws of paired characters कहते हैं कि they are in for each character there are 2 genes are present। दूसरी चीज़ मेंडल ने F1 जनरेशन में जब ये बताया कि यहाँ पर ड्वार्फनेस का जीन प्रेजेंट है लेकिन ये प्लांट टॉल है, तो मेंडल ने एक लॉ दिया जिसको लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस ये बताता है कि जो जीन F1 जनरेशन में एक्सप्रेस हो रहा है उसको हम डोमिनेंट जीन कहते हैं और जो जीन एक्सप्रेस नहीं हो रहा है उसको हम रिसेसिव जीन कहते हैं। तो यहाँ पे टॉलनेस का जीन एक्सप्रेस हो रहा है तो ये जो है डोमिनेंट जीन है
और ये एक्सप्रेस नहीं हो रहा है तो ये एक रिसेसिव जीन है। दूसरी चीज़ मेंडल ने ये कंक्लूजन निकाला कि यहाँ पर अगर टॉलनेस और ड्वार्फनेस के जीन प्रेजेंट हैं तो ये ड्वार्फ प्लांट तभी प्रोड्यूस हो सकता है जब यहाँ पर दोनों जीन्स एक साथ प्रेजेंट हो। इसके लिए मेंडल ने एक कंक्लूजन ये बताया कि एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन दीज टू जीन्स गेट सेपरेटेड, ये दोनों जीन सेपरेट हो जाते हैं, क्योंकि सेपरेट होंगे तभी स्मॉल टी से कंबाइन होगा और एक स्मॉल टी का पेयर बनेगा और ड्वार्फ प्लांट प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पर मेंडल ने एक और लॉ दिया कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इट मीन्स दैट जीन्स गेट सेपरेटेड एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। ऑल्दो मेंडल हैज़ नॉट यूज द वर्ड जीन्स, उसने फैक्टर वर्ड यूज किया था। उसने ये कहा था कि देयर वर टू फैक्टर्स वर प्रेजेंट इन F1 जनरेशन, वन विच वॉज एक्सप्रेस्ड was dominant and one which was not expressed in F1 generation was a recessive. इसके बाद मेंडल ने कुछ रूल्स दिए। रूल्स में मेंडल के जो लॉज थे, रूल्स और वी कैन से द लॉज, मेंडल ने कैपिटल लेटर्स का यूज किया टू शो डोमिनेंट कैरेक्टर। एंड ही यूज्ड स्मॉल लेटर टू शो रिसेसिव कैरेक्टर। And he also concluded from his experiment that for each character there are two alleles are present. There may be three types of combination. First, capital T, second, capital T, small t, and third, small t, small t. Capital T means homozygous dominant, this combination is known as homozygous dominant, and phenotypically this plant will be a tall plant because both the alleles are dominant and they will express to form a tall plant. Here two alleles are of different types, so they are known as heterozygous dominant. बिकॉज मेंडल ने जो कंक्लूड किया था अपने एक्सपेरिमेंट में कि अगर दो डिफरेंट टाइप के अलील्स प्रेजेंट हैं, एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है, तो डोमिनेंट वाला अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और रिसेसिव अपने आप को हाइड करेगा, वो एक्सप्रेस नहीं होगा। तो यहाँ भी फिनोटिपिकली जो प्लांट का फिनोटाइप होगा वो एक टॉल प्लांट होगा। इन नेक्स्ट केस दिस इज both the alleles are of same types, so they are known as homozygous recessive. So here the phenotype of plant will be dwarf. ये जो प्लांट होगा ये ड्वार्फ होगा। तो तीन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं डोमिनेंट और रिसेसिव अलील्स को मिलाकर। दोनों अगर डोमिनेंट अलील्स एक साथ प्रेजेंट हैं तो इसको होमोजाइगस डोमिनेंट कहेंगे और ये टॉल प्लांट बनाएगा। अगर एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है तो क्योंकि ये डिफरेंट टाइप के हैं तो इसलिए इसको हम हेट्रोजाइगस
यहाँ पर हेट्रोजाइगस डोमिनेंट होगा और ये टॉल प्लांट बनेगा। और थर्ड कॉम्बिनेशन जो होगा वो स्मॉल टी जिसको होमोजाइगस रिसेसिव कहेंगे और ड्वार्फ कैरेक्टर। तो टॉल प्लांट के लिए जो डोमिनेंट कैरेक्टर है इट कैन बी एक्सप्रेस इन टू वे इफ बोथ द जीन्स आर सिमिलर एंड इफ one dominant and one recessive is present, then the plant will be tall. The recessive character can only be expressed only this homozygous recessive condition when both the alleles are in recessive state. Next is results of the experiment. F1 plants of reciprocal crosses were similar. मेंडल ने, ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि मेंडल ने एक बार टॉल प्लांट को मेल माना और ड्वार्फ प्लांट को फीमेल कंसीडर किया। दूसरी बार में ड्वार्फ प्लांट को मेल कंसीडर किया और टॉल प्लांट को फीमेल कर। तो इस तरह से जब इन्होंने रेसिप्रोकल क्रॉस करके देखें तब भी उनके जो F1 जनरेशन में जो रिजल्ट था वो सारे के सारे प्लांट उन्हें टॉल मिले। तो रिजल्ट्स वर सिमिलर आफ्टर doing this reciprocal crosses. F1 plants were not intermediate between two alternate traits of a character. जो भी F1 plants मिले थे, F1 जनरेशन के प्लांट थे, वहाँ कोई इंटरमीडिएट प्लांट नहीं था, सारे के सारे प्लांट टॉल थे। F2 जनरेशन में दोनों ही पेरेंटल ट्रेट एक्सप्रेस होते हैं। जब F1 जनरेशन के प्लांट को लेकर सेल्फ क्रॉसिंग की जाती है तो F2 जनरेशन में दोनों ही ट्रेट एक्सप्रेस होते हैं, कुछ टॉल होते हैं और कुछ ड्वार्फ होते हैं। वन ट्रेट ऑफ कैरेक्टर विच वर नॉट एक्सप्रेस इन F1 जनरेशन मस्ट लाई हिडन और अनएक्सप्रेस इन इट। मेंडल ने ये देखा कि F1 जनरेशन में जब टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट को क्रॉस किया तो F1 जनरेशन में सारे प्लांट टॉल थे। तो मेंडल ने ये कंक्लूड किया कि जो ड्वार्फनेस का कैरेक्टर है वो हिडन है, यानी वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। अगर वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है इसका मतलब वो एक रिसेसिव ट्रेट है, और जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है वो एक डोमिनेंट ट्रेट है। तो हाइट के कंडीशन में जो टॉलनेस का जीन था वो डोमिनेंट था और जो ड्वार्फनेस का था वो एक रिसेसिव जीन था। The organism should possess two factors of each character. Mendel concluded from his experiment कि हर कैरेक्टर के लिए दो फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं। Out of the two factors or alleles of alternating trait of the character, one is dominant and expressed in F1 generation and the other factor is recessive and does not show its effect. तो ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि F1 जनरेशन में जो ट्रेट या अलील एक्सप्रेस हो रहा है उसको हम डोमिनेंट ट्रेट कहते हैं, और जो F1 जनरेशन में जो फैक्टर एक्सप्रेस नहीं हो रहा है यानी ड्वार्फनेस का फैक्टर हाइट के केस में, तो उसको हम रिसेसिव फैक्टर्स कहेंगे। देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ टू फैक्टर्स इन द हाइब्रिड। टॉलनेस और ड्वार्फनेस का कैरेक्टर मिक्स नहीं होता है, दे गेट सेपरेटेड इंडिपेंडेंटली एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट बनते वक्त दोनों ही कैरेक्टर एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं और एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करते हैं। एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन द टू फैक्टर्स सेपरेट एंड पास इनटू डिफरेंट गैमेट। टू ट्रेट्स of character appears in F2 generation in the ratio of 3 dominant to 1 ratio और 3:1 रेशो। तो F2 जनरेशन में जो टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट का रेशो हमें मिलता है, जो फिनोटाइपिक रेशो है वो 3:1 है, यानी 3 टॉल प्लांट मिलते हैं और 1 ड्वार्फ प्लांट मिलते हैं। इसको आगे हम जब मोनो हाइब्रिड क्रॉस करेंगे तो वहाँ इसे और अच्छे से समझ सकेंगे। द फॉर्मेशन ऑफ 4 टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल in the F2 generation of a dihybrid cross shows that alleles of the two characters are stored independently. At the time of gamete formation ये देखा गया कि जो characters हैं they do not affect each other, they do not alter the characters of the other factor and they
silently get separated without affecting each other, and this is known as independent assortment at the time of gamete formation.